वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को चाय पीने को मिल गई हो, या जो भी आप पीते हो वो आपको पीने को मिल गया हो। जो भी इस समय पिया जा सकता है वो आपको मिल गया हो। जी हमें भुवन के दिखा रहे हैं। अच्छा भुवन जी, आपने अपना कप दिखा दिया तुरंत ही कि जो है आपके पास कॉफी है। तो मुझे बेहद जो है वो खुशी हो रही है बताते हुए कि आज जो हमारे अब के सेशन के जो स्पीकर हैं वो लिटरली he is somebody who has worn both the hats, in the sense that he's been an administrator, he's worked in the University of Delhi in the capacity of an assistant registrar, और उससे ज्यादा भी खुशी इसलिए हो रही है कि हमने उनको जो है पोच कर लिया है, मतलब कि अब वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हो गए हैं। एंड नाउ ही इज teaching here at the University of Delhi in Satyavati College, and he teaches history. And he's not just someone who teaches history. I think he's somebody who practices history. If you look at his work and the kind of work that he has done and he's currently doing, for example, he's instrumental in sort of envisaging the history that we are in our centenary year, 100 years, and he's one person, he's a go-to person for us in terms of understanding that how should we understand the history of Delhi University, especially looking at it from the point of view of the modern history of India. So in that sense, he's also a practitioner of history, not to mention the fact that he's somebody who is widely published, and not just published with this and that. मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कहीं भी छाप लेते हैं इधर उधर और बस जो है we sort of manage, but Professor Jha is someone who has published with the most reputed of the publishers, like Routledge, like Rupa, and therefore if someone has published with Rupa, that what it tells me is that it's a popular writing platform, in the sense that he's taking history to people, and not just for academic discourse, that okay, okay, just few people are citing you and citing your work. No, he's written Nation First for Rupa, and sir, many congratulations for this publication. I should actually get this in our library as well, and would certainly look at this work. And also he is published, as I was saying, with Routledge, Hindu Nationalism in India, Ideology and Politics. So he's somebody of, as I just said, widely published, somebody who practices history, and also somebody who has been in your role, what you're doing right now. And of course, but today what he's going to talk about is the history of India, and specifically, it will be very interesting to see as to what turn he gives to the history when he talks about it from the perspective of the Constitution, as he's going to talk about the history and the making of Indian Constitution. So, sir, over to you now. Thank you, Gitanjali. Some of it is deserved, but some of it is slightly more lauded than I actually deserve. And I always feel happy to be part of the administrators' fraternity. And even while I have come to teaching, I continue to share a very fond relationship with administration and administrative staff and my colleagues and all. So to a large extent, I remain an inalienable part of the administrative infrastructure of the university system. And thank you, Gitanjali, for such a generous introduction. And of course, every one of us who has read history or who has not even read history has some sense of history. History is something that in our own identity, in our own current identity, we have to create certain interface with history. हम इतिहास पढ़ते हो या न पढ़ते हो, लेकिन जो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है, हम जिस युग में जीते हैं, जिस परंपरा को ग्रहण करते हैं, जिस भविष्य की कल्पना करते हैं, वह इतिहास की समझ के बगैर संभव नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपने अपने तरीके से इतिहास की अपनी अपनी समझ विकसित करते हैं। कुछ चीजें हमें
बताई जाती हैं, कुछ चीजों पर हम खुद प्रश्न उठाते हैं, उससे कुछ आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि इतिहास मुश्किल है या आसान है, या किसने क्या सीखा, किसने क्या नहीं सीखा। प्रश्न यह है कि क्या इतिहास के बिना हमारा काम चल सकता है? मेरा जवाब तो यही होगा कि नहीं। हम बगैर इतिहास को समझे अपने वर्तमान को ठीक से नहीं समझ पाते। ठीक उसी तरह से यदि हमें इतिहास का कोई दृष्टिकोण विकसित करना है, जब हम इतिहास में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो वह हमारे लिए वह घटनाक्रम, वह प्रक्रिया, कोई व्यक्ति विशेष, कोई विचार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे अपने समय में भी उसकी कोई अहमियत है। यदि हमारे अपने समय में उस किसी बात की अहमियत कम हो जाती है, तो हम उसको इतिहास में भी देखने की कोशिश नहीं करते। तो जिस प्रकार के विचार की दुनिया में, यात्रा में हम जीते हैं अपने वर्तमान में, उसको पीछे जाकर के भी देखते हैं। जब मीनाक्षी साहे जी ने मुझे फ़ोन किया, और उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शरीक होने का मौका दिया। तो हम लोग कुछ विषयों पर चर्चा करते रहे कि किस तरह के विषय पर चर्चा हो। हमारे जो पूर्व सहयोगी हैं, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमने मिलकर काम भी किया है। तो किस तरह की चर्चा हो, और चूँकि आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, और आज़ादी और संविधान लागू होना दोनों एक-दूसरे के पूरक के रूप में है। गांधी जी ने 1909 में जब हिंद स्वराज लिखा, तो बार-बार यह कहा कि यह स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से नहीं बनेगा। If we just merely attain political freedom, that will mean no स्वराज। यदि हम मन से अपने मानसिक स्थिति में एक नई तरह की वृत्ति नहीं ग्रहण करते हैं, नई तरह की व्यवस्था विकसित नहीं करते हैं, नई तरह की सोच विकसित नहीं करते हैं, नए तरह की अर्थव्यवस्था नहीं विकसित करते हैं, हम यदि विदेशों पर आधारित रहेंगे हर चीज के लिए, और उनके तंत्र को लेकर के चलते रहेंगे, तो हम सही मायने में स्वतंत्र या स्वराज के हकदार नहीं। And he made it very categorical. And in pages after pages, if you read his Hindu Swaraj, it's very categorical in the sense that, and he asks this question in Hindu Swaraj, he himself asks this question कि क्या आप विदेशियों के बगैर विदेशी शासन चाहते हैं? क्या आप इसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं जब आप स्वराज की बात करते हैं, या आप खुद अपनी व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं? इसलिए आपने देखा होगा कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन लेकर के आते हैं, उसमें छुआछूत का विरोध और चरखा से काम करना, कपड़े बुनना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। तो हम सिर्फ एक औपनिवेशिक सत्ता का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी एक यात्रा तय कर रहे हैं, अपना एक तंत्र विकसित कर रहे हैं, क्योंकि तभी स्वराज का स्वरूप गहरा हो पाएगा। नहीं तो स्वराज का स्वरूप हमेशा सुपरफिशियल रहेगा, बहुत कॉस्मेटिक रहेगा। एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस लर्न एंड स्पीक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन आवर ओन वेज। जब हमने संविधान के विषय को चुना कि संविधान के कई सारे हिस्से हैं, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, कई तरह के शेड्यूल्स हैं, भाषाओं को लेकर प्रश्न है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिट स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कही जा रही है, जुडिशियरी के पावर्स है, कई तरह की बात है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आजादी के बाद हमारी यात्रा को, हमारे ब्लूप्रिंट को, हमारे समाज के, राजनीति के, अर्थव्यवस्था के, जो देश का स्वरूप होगा, इसका एक वृहत ब्लूप्रिंट डेवलप करता है। एंड द मेंबर्स हु वर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम थ्रू some kind of indirect election, because people who had been elected to the provincial assemblies during the elections of 1945 and 46, it were these people who elected representatives to the constituent assembly. तो परोक्ष रूप से चुने गए थे। और इसमें आप if you look at the names of the members of the constituent assembly, it almost looks like who is who of India's intellectual and political life at that time. यदि आप मतलब उसमें नामों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई नाम छूट नहीं रहा है। हर नाम जो आप सोच सकते हैं उस संविधान समिति में, संविधान परिषद में शामिल है। एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ डिबेट्स। इफ यू लुक एट हाउ लॉज हैव बीन मेड इन इंडिया, हाउ ड्राफ्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया, इसमें इतना लंबा समय
और if you look at even one date, अभी आप यदि if you look at the website of the Constituent Assembly of India, लोकसभा राज्यसभा दोनों से लिंक्ड है, 11 वॉल्यूम है, each volume runs into thousands of pages. हर दिन इतना डिस्कशन हो रहा है, हर छोटी छोटी बातों पर उसके इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा है, इस पर वाद विवाद होता है, फिर उसके कमिटीज बनते हैं. ये तो सिर्फ डिस्कशन की बात है जो कि उस ओपन हाउस में हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल कमिटीज एंड सब कमिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली which discuss specific issues, try to go threadbare, और फिर उसके उस सब कमिटी के निर्णय को लेकर के आते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में. तो जो हमें डिबेट दिख रहा है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, सिर्फ वही डिबेट नहीं है. देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ डिबेट्स which are on the sidelines of the constituent assembly debates. उस मुख्य हाउस के अलावा जो सेलेक्ट कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, तमाम तरह की सब कमेटी है, वहां डिस्कशन हो रहा है. तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो संविधान समिति बैठी दिसंबर 1946 में, वह ऐसा समय है कि भारत के विभाजन की बात चल रही, दो राष्ट्र बनने की बात हो रही है. नोआखाली और त्रिपुरा और बिहार में दंगे शुरू हो चुके हैं, पंजाब का दंगा भी आगे आने वाला है. तो ऐसे परिदृश्य में जो वायसराय हैं, वेवेल, उनके जाने का समय हो रहा है, वेवेल के जाने का समय हो रहा है और माउंटबेटन के आने का समय हो रहा है. ऐसी विभीषिका के समय में एक संविधान जन्म लेता है. इट बिकम्स ऑल द मोर चैलेंजिंग. The worth of the document should also be assessed by the circumstances in which it was created. जिन परिस्थितियों में आप एक वृहत दस्तावेज का निर्माण कर रहे हैं, वो कोई मामूली समय नहीं है. यदि आप सिर्फ विभीषिका की बात करें, यदि आप हत्या की बात करें, तो आप नोआखाली, त्रिपुरा, बिहार राइट्स और पंजाब के जो दंगे हैं, अगस्त 1946 से लेकर के अगस्त 1947 तक के पार्टीशन के राइट्स तक के, वो दुनिया में और कहीं नहीं देखे गए. इतने बड़े स्तर की विभीषिका और इतने बड़े देश का विभाजन होना. 565 पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, रियासत हैं, जिनको बार बार अंग्रेजी हुकूमत यह कह रही है कि आप किधर भी जा सकते हैं जी, ये आजाद भी रह सकते हैं. वो आपके लैंड ब्लॉक के अंदर बना हुआ है. इतने सारे समस्याओं के बीच में नेताओं द्वारा समय निकालना, हर बिंदु पर बहस करना और एक ऐसा दस्तावेज बना करके लाना विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम, जो अनेक माइनर मेजर अमेंडमेंट्स के बावजूद अपनी जगह बनाए हुए. It is the longest written constitution of the world. It has ensured that India stays a democratic, sovereign republic. In spite of all the diversities, in spite of all kinds of difficulties, it has remained a very vibrant democratic republic. This is what is the worth of the constitution. आज हम लोग इसके पृष्ठभूमि में जाने की चर्चा करेंगे, किस तरह के पड़ाव से लेकर के इसका निर्माण हुआ और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, मुख्य रूप से किस तरह की बातें कही जा रही हैं संविधान सभा में, खास करके शुरुआती दिनों में, और जो देशी रियासतें हैं, जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे आप हिंदुस्तान के साथ लेकर के आते हैं. These are some important questions, and I would love if my colleagues they also get on with some kind of interaction. कुछ प्रश्न लेकर के आए और फिर हम उस बहस को और लंबा खींचा जा सकता है. I will share my screen with you. History and making of the Indian Constitution.
took almost 2 years, 11 months and some days for the constitution to be completed. करवाना पड़ेगा। मैडम देती है बहुत राधा। There were total 11 sessions spanning over several days. Actual days of sitting of the main committee, the main assembly, was 165 days. And it aptly reflects, if you look at the debates in the Constituent Assembly, it aptly reflects the diversity and to some extent the vastness and the uniqueness of this country. बहुत तरह के विचार आते हैं इसमें, आपको लगेगा कि आप पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, इस तरह के विचार आते हैं। But the Constituent Assembly debates are the actual process of the making of the Constitution. But the blueprint, the consciousness, the struggle that preceded almost over a century of time. वह सिर्फ एक दिन या 3 वर्ष की यात्रा नहीं थी, वह लगभग 100 वर्षों की यात्रा थी, जब से स्वराज का डिमांड हो रहा था, अपने शासन का डिमांड हो रहा था, और दूसरे तरफ उन डिमांड्स के रिस्पॉन्स में, उन मांगों के प्रति उत्तर में कुछ थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा था कानून बनाने वाले बॉडीज का, विधायिकाओं का, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू लेट इंडियंस फील दैट दे आर एक्चुअली गवर्निंग देमसेल्व्स। तो स्वराज की बात तो दूर, लेकिन एक जो आधुनिक समय में डेमोक्रेसी की परिकल्पना है, जो प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की परिकल्पना है, उस यात्रा में छोटी शुरुआत अवश्य हुई। The first experiment was the Indian Councils Act of 1861. This comes 4 years after the revolt of 1857. And as we all know, after the revolt of 1857, the control over India's administration passes from the East India Company directly to the Crown. उसके बाद हम लोग सीधे इंग्लैंड की प्रजा हो गए 1858 के अधिनियम के बाद, और गवर्नर जनरल को अतिरिक्त रूप से वायसराय के नाम में भी जाने लगा। तो पहली बार जब यह इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना, इसमें वायसराय वाज empowered to add some nominated members, those members whose names do not come from England, but the viceroy is allowed to nominate. So under this pretext, under this indirect provision, Viceroy nominates 3 Indian princes to his council. यह एक छोटी सी शुरुआत थी, but it paved the way for further developments. From 1861, over the next 3 decades, several changes are going on in the Indian system. You have the Viceroyalty of Lytton from 1876 to 1880. Then you have the Viceroyalty of Lytton, and then followed by the Viceroyalty of Ripon. There is certain sense of consolidation among the Indian political entities. जो भारत के सुधारक थे, समाज सुधारक थे, उसमें से कुछ अब राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं. The idea is to put the questions of general interest in public domain. सामूहिक रूप से हम राजनीतिक प्रश्नों पर चर्चा करें, विधायिका के प्रश्नों पर चर्चा करें, स्वशासन की बात सोचें. And when the Congress was founded in 1885 as a platform, as a larger platform for nationalists, then the demand for self-rule from this platform grew. इन जो शुरू के जो विचारक हैं, राजनेता हैं, इनको नरमपंथी भी कह दिया जाता है, क्योंकि यह याचिका लिखते थे, पिटीशन लिखते थे, अखबारों में लिखते थे, अपील करते थे टू द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, जो इनको विरोधियों को, तिलक जैसे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था. बहरहाल जो डिमांड आ रहा था, उससे यह हुआ कि 1892 में जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट संशोधित हुआ, एक दूसरा अधिनियम आया, उसमें इलेक्शन का प्रावधान किया गया. परोक्ष रूप से इलेक्शन था, लेकिन इलेक्शन का प्रावधान किया गया, और 10 से 16 एडिशनल मेंबर केंद्रीय विधायिका में हो सकते हैं. एंड देयर कैन बी मेनी मोर एडिशनल मेंबर्स इन प्रोविंशियल काउंसिल्स. तो कुछ भारतीयों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का मौका अब 1892 के बाद ठीक से मिलने लगा. संख्या सीमित थी, और जो इलेक्शन का प्रावधान था वो जो
सीट्स होते थे वो कोई यूनिवर्सिटी के सीट्स, अभी भी कुछ प्रोविंसेस में आप किसी स्टेट्स में जाएंगे तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नॉट द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीट्स यूनिवर्सिटीज के लिए रिजर्व होते हैं, शिक्षा के लिए रिजर्व होते हैं, कुछ म्यूनिसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिए होते हैं। तो यहाँ भी जो सीट्स थे, जो कंस्टिट्यूएंसीज थे, वो कोई यूनिवर्सिटीज का कंस्टिट्यूएंसी था, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का था, कुछ जमींदार का था, कुछ म्यूनिसिपल बोर्ड्स का था। और इस काउंसिल एक्ट में 1892 के काउंसिल एक्ट में एक अतिरिक्त ताकत दी गई कि लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जब जाएंगे तो वहां पर वोट डालने का भी अधिकार होगा। पहले सिर्फ बहस कर सकते थे, अब आप बहस के साथ वोट भी डाल सकते हैं। 1906 ईस्वी में इंग्लैंड में सरकार बदलती है और कंजर्वेटिव की जगह पर लिबरल पार्टी पावर में आती है और जॉन मॉर्ले को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है। मिंटो यहाँ पर वाइसराय हैं। मॉर्ले और मिंटो ने मिलकर के विधायिका को के विस्तार की एक नीति बनाई, जिसको भारत सरकार अधिनियम या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में या 1909 के अधिनियम में सीटें तो बढ़ी, लेकिन एक और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं वो भी सीट इलेक्ट करके सेंट्रल काउंसिल में भेजेंगे। लेकिन 1905 में आपको मालूम होगा बंगाल का विभाजन हुआ सांप्रदायिक प्रश्न को ध्यान में रख करके, सांप्रदायिक दुर्भाव को बढ़ाने के लिए। 1906 के दिसंबर में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक विधायिका का प्रस्ताव रखा गया। पृथक विधायिका का अर्थ है कि जिस कुछ सीट होंगे जिस पर मुसलमान ही खड़े होंगे और सिर्फ मुसलमान ही वोट डालेंगे। यह आरक्षित सीट से थोड़ा डिफरेंट हुआ, जिसको कि हम विधायिका को, इलेक्टोरेट को ही आपने पृथक कर दिया, इलेक्टोरेट को ही सेपरेट कर दिया। यह पहली बार 1909 में पहली बार एक सांप्रदायिकता की नींव डाली गई एक कानून के द्वारा। 1905 के बंगाल विभाजन में तो हुआ ही था, लेकिन इसमें एक ऐसी नींव डाली गई जिसको कि पीछे हटाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारे लोग इस विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में, प्रांतीय विधायिकाओं में आए। लेकिन 1914 के आसपास जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इस तरह की बातें होने लगी कि यदि विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों के साथ रहते हैं तो विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें कुछ और कंसेशन मिल सकते हैं, सेल्फ रूल का कुछ ब्लूप्रिंट ठीक ढंग से हमें मिलेगा। लेकिन जब आप होम रूल मूवमेंट को देखते हैं 1916 से 18 के बीच में, जो होम रूल मूवमेंट है जिसको तिलक चला रहे हैं और एनी बेसेंट चला रही हैं, जहां तिलक बोलते हैं कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आंदोलन गति भी पड़ता है। कांग्रेस उस समय में थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है क्योंकि ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को वो नहीं खराब करना चाहते हैं। तो इसी समय 1918 के अंत में, अगस्त सितंबर में, मोंटेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, भारत सचिव हैं, वह एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं और जो चेम्सफोर्ड है यहाँ पर गवर्नर जनरल, इनके साथ मिलकर के उस प्रस्ताव को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स की संज्ञा दी जाती है। उसी के आधार पर, मोंटफोर्ड रिफॉर्म के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनता है, जिसमें पहली बार केंद्र में 2 विधायिकाएं बनती और जो इंपीरियल काउंसिल था, जो वायसराय का काउंसिल था, उसको एक्सपेंड करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया। हमारा जो वायसरीगल लॉज है जिसमें एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें बाहर लिखा हुआ है कि ये इंपीरियल काउंसिल का काम भी करता है। तो यह जो इंपीरियल काउंसिल है या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय चुन करके आ रहे हैं। लेकिन चूंकि असहयोग आंदोलन चल रहा है तो 1920 में बैकआउट हुआ, लेकिन 1923 में और 26 में स्वराज पार्टी या अन्य पार्टियों के माध्यम से भारत के लोग, प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। लेकिन प्रांतों में 1919 के कानून में प्रांतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, इन द सेंस की जो पावर्स हैं मिनिस्टर्स के, मंत्रियों के, वो बहुत सीमित हैं। वो उतने ही पावर होते हैं जितना कि गवर्नर उनको ट्रांसफर करते हैं। जो डिमांड है उसकी कुछ की चर्चा हम कर चुके हैं, एनी बेसेंट वगैरह की हमने चर्चा कर ली, गांधी के हिंदू स्वराज की भी बात कर ली, और जो अरबिंदो घोष और तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाजपत राय जैसे नेता हैं
जिनको कि नई पार्टी या गरम दल कहा जाता है, इन लोगों ने इस स्वराज के अर्थ को थोड़ा और विकसित करना शुरू किया। अरबिंदो तो बार-बार, अरबिंदो बहुत अच्छे लेखक थे और वह बार-बार कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होगा, तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बात कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ नहीं बात कर सकते हैं। और उन्होंने इस बाबत, इस परिप्रेक्ष्य में कई सारी लेखनी है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है, 1919 के मार्च में एक और कानून आता है जिसको कहते हैं रॉलेट कानून। उसके विरोध में, उस रॉलेट कानून में जो भी सत्याग्रह, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ पाए जाएंगे या जिस पर भी थोड़ा सुबह होगा, जिस पर भी थोड़ा संशय होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। आरोप भी बताने की तुरंत जरूरत नहीं है। ऐसे काले कानून के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की बात की। सत्याग्रह भी चला, उसमें कुछ खून खराबा हुआ तो गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन फिर जलियांवाला बाग हुआ, पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया और फिर परिदृश्य थोड़ा बदलता गया। गांधी ने काउंसिल्स के विरोध की बात की कि कोई भी काउंसिल, जो भी सत्याग्रही होगा वह काउंसिल का बहिष्कार करेगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1922 में। असहयोग आंदोलन वापस हुआ, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इसके साथ साथ और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। दे पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस ऑफ 1923। 1923 में और 1924-26 में केंद्रीय विधायिका में बहुत तरह के डिबेट आपको मिलेंगे जिसमें कि इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The point that I'm trying to make is when you come to the Constituent Assembly in 1946, the politicians who are participating have a fairly long experience of either being in the public life or having debated issues in the central legislature or provincial legislature. ऐसे नहीं है कि कोई नव सिखाए हुए। इन्होंने इतना अनुभव बटोरा हुआ है यहाँ के विधायिकाओं में काम कर करके या पब्लिक लाइफ में नेतृत्व दे करके कि आप यदि उनकी बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत गहन अध्ययन कई सारे विषयों पर दिख रहा है। 1927 में सैमन कमीशन के आने की घोषणा हुई। इट वॉज एन ऑल व्हाइट्स कमीशन, इसमें कोई हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, इसीलिए इसके विरोध की बात चली कि हम सैमन कमीशन को, सैमन आयोग को क्यों स्वीकार करें। तो इंग्लिस्तान के लोगों ने, अंग्रेजों ने कांग्रेस को यह एक चैलेंज दिया कि भाई आप कहते हैं कि आप यदि एकजुट हैं तो आप ही एकजुट बन करके, एक इकट्ठे होकर के कंसेंसस बना करके एक संविधान बना दीजिए, एक ब्लूप्रिंट बना दीजिए। तो इस बात के को ध्यान में रख करके एक ऑल पार्टीज मीटिंग हुई जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम पड़ा मोतीलाल नेहरू कमेटी। इसमें मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, हिंदू महासभा के लोग भी हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के लोग भी हैं, लिबरल पार्टी के लोग भी हैं। और इस समिति ने, जो कि जिसमें कि हर क्षेत्र के प्रतिनिधि, इसने अपनी संस्तुति दी जिसमें कि पृथक विधायिका को छोड़कर के संयुक्त विधायिका अपनाया जाएगा। और सिंध, जो मुस्लिम नेताओं का डिमांड था कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए, उसकी भी अनुशंसा की, लेकिन कुछ कंडीशंस रखे और यह बोला कि जो मेजॉरिटी प्रोविंसेस है जहां पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जैसे पंजाब है या बंगाल है, वहां रिजर्वेशन नहीं होगा, यदि होगा तो जहां हिंदू। तो इस तरह की बातें हुई। लेकिन जिन्ना साहब उस समय मौजूद नहीं थे, वो इंग्लैंड और फ्रांस में थे, उनकी पत्नी बीमार थी। जब वो आए अक्टूबर 1928 में, उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोला और ऑल पार्टीज मीटिंग जब हुई कलकत्ता में दिसंबर 1928 में, वहां नेहरू रिपोर्ट पर कंसेंसस नहीं बन पाया। द लैक ऑफ कंसेंसस ऑन नेहरू रिपोर्ट, द फेल्योर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ not being able to evolve consensus on communal issues present in India was the last big Indian attempt to evolve a common constitution. 1946-47 में भी आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया
और फिर मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को 3 जून 1947 को अलग संविधान समिति बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थ यह है कि यह जो नेहरू रिपोर्ट है, यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेकर के, ज्वाइंट इलेक्टोरेट को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस को लेकर के, धर्म के अधिकार को, धर्म को अपनाने के अधिकार को लेकर के, कि हम जिस धर्म को हमने अपनाया हुआ है, जिस धर्म को हम अनुयायी है, उसको प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार मिले, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। और जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वह यह बताते हैं कि इसमें जो 19 अधिकारों की चर्चा है नेहरू रिपोर्ट में, उसमें किसी न किसी रूप में 10 अधिकार हमारे वर्तमान संविधान में भी शामिल है। So the Nehru report to a large extent also becomes a precursor of the final constitution. लेकिन यह पारित नहीं हो पाया और जिन्ना साहब ने और अपने डिमांड्स को बढ़ाना शुरू किया। मार्च 1929 में वो 14 सूत्रीय मांग लेकर के आए, which had certain new demands which had not been stated earlier. और फिर कांग्रेस को लगा, राष्ट्रवादियों को लगा कि यह रास्ता, इस रास्ते से तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड हुआ। उस पर भी जो गवर्नर जनरल हैं, वाइसराय हैं और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पीछे इंग्लैंड में, कंसेंसस नहीं हो पाया। कांग्रेस को लगा कि हमें सेल्फ रूल जैसी कोई बात यहाँ से नहीं मिली है। सो एज ए रिस्पॉन्स एंड एज ए रिसर्जेंस ऑफ द यंग फोर्सेस इनसाइड द कांग्रेस, in December 1929, a पूर्ण स्वराज resolution was adopted. स्वराज आंशिक नहीं हो, स्वराज पूर्ण हो, पूरे भाव भंगिमा के साथ हो। झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे नेहरू जी के द्वारा, और यह अपील की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएं। और हर वर्ष 26 जनवरी को उस तरह की सभाएं, गोष्ठी होती गई। इसीलिए जब 26 नवंबर 1949 को संविधान समिति ने संविधान को एडॉप्ट किया, तो यह प्रस्ताव रखा गया कि हम रिपब्लिक का डिक्लेरेशन 26 जनवरी 1950 को करेंगे। और जो 26 जनवरी जो तिथि है, वह 26 जनवरी 1930 से आ रहा है, और उसकी पृष्ठभूमि में लाहौर रेजोल्यूशन था। स्वराज पार्टी खत्म नहीं हुआ था। वैसे स्वराज पार्टी में बहुत सारे डिवीजन हो गए थे 1927-28 में, 1926-27 में। 1934 में फिर से इलेक्शन का समय आया। स्वराज पार्टी ने सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की, और यह स्पष्ट हुआ पहली बार कि यह संविधान जो बनेगा वह कैसे बनेगा। यह संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड बाय ए constituent assembly representative of all sections of the Indian people. यह ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया संविधान नहीं होगा, जब वह हिंदुस्तान के हर समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया संविधान होगा। 1934 में जब व्हाइट पेपर आया, व्हाइट पेपर मतलब कैसा सरकार का स्वरूप कैसा होगा, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद यह आया, तो उसको जब रिजेक्ट किया कांग्रेस ने, तो उसमें यह लिखा कि एकमात्र विकल्प है कि जल्द से जल्द हर व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो। वह जो प्रतिनिधि चुने, उन प्रतिनिधियों के द्वारा एक संविधान बनाया जाएगा। यही एकमात्र विकल्प बचा है। दिसंबर 1936 में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और यहां भी इस तरह की बात की गई दैट द कांग्रेस स्टैंड्स फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इन इंडिया वेयर पॉलिटिकल पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द पीपल एज ए होल, जहां लोगों को एक सामूहिक रूप से आपने राजनीतिक सत्ता सौंपी है, और जहां सरकार पर अंतिम नियंत्रण आम आदमी या आदमियों के, नागरिकों के समूह का है।
और ऐसी व्यवस्था कब बनेगी, जब एक संविधान समिति का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा, जो देश के लिए एक संविधान बना करके ले। 1937 में 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। आचार्य कृपलानी ने, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया, सारे प्रांतों को भेजा, और उसमें यह बात कही गई थी कि 1919, 1935 जो भी अधिनियम है इसको रिपील किया जाए और उसके जगह पर एक स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया जाए। और वह संविधान कहाँ से कौन बनाएगा? संविधान सभा बनाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रिजोल्यूशन लिया नवंबर 1939 में। कांग्रेस के मंत्रिमंडल रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अनाउंसमेंट में कांग्रेस से सहमति नहीं ली गई कि हिंदुस्तान की सेना भी उसमें हिस्सा लेगी, तो नाराजगी में इन्होंने रिजाइन किया। उसके वर्किंग कमेटी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जो हिंदुस्तान की आजादी है, स्वतंत्रता है, उसको पहचानना, उसको वापस देना बहुत जरूरी है, और लोगों के जो अधिकार है उसकी स्थापना, उसकी पुनर्स्थापना अति आवश्यक है। वह तब होगा जब संविधान सभा बनेगी, जो एक संविधान, एक ब्लूप्रिंट, एक शासकीय व्यवस्था बनाएगी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 42 से 45 ज्यादातर नेता जेल में रहे। 45 में जब जेल से निकलना शुरू हुआ तो उस समय के वायसराय ने, वेबल ने एक समझौते की घोषणा की, एक कॉन्फ्रेंस की घोषणा की शिमला में। उसमें सारे दल के नेता आए, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह जिद ठान ली कि वायसराय के काउंसिल में जो भी मुस्लिम सदस्य होगा वह लीग द्वारा ही मनोनीत हो, किसी अन्य पार्टी या कांग्रेस द्वारा मनोनीत नहीं हो। इस वीटो पर जिन्ना को वीटो पावर दिया गया। यह स्वीकार कर लिया गया कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ही कर रहे हैं, और जिन्ना के जिद के आगे यह कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन 1945 के अंत में और 1946 के जनवरी में प्रांतीय सभाओं में चुनाव हुए। उस चुनाव में जो हिंदू सीट्स हैं, जो नॉन मुस्लिम सीट्स हैं, वो 90% कांग्रेस के तरफ गए। जो मुस्लिम सीट्स हैं वो 90% मुस्लिम लीग के तरफ गए। मुस्लिम लीग फॉर मुस्लिम्स, और चाहे अनचाहे कांग्रेस नाउ स्टार्टेड स्टैंडिंग फॉर हिंदूज अलोन बिकॉज इट हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों का वोट कांग्रेस को नहीं जा रहा था। अब इन्हीं सभाओं ने, जब कैबिनेट मिशन आया मई 1946 में, जब कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने अपनी घोषणा की कि ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, यही प्रतिनिधि चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। सो बाय अगस्त 1946 द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड बीन, और इसको भी यदि आप संविधान सभा के कंपोजिशन को देखेंगे तो जो ब्रिटिश इंडिया है, मतलब प्रिंसली स्टेट्स को यदि छोड़ दिया जाए, उसमें नॉन रिजर्व सीट्स में, नॉन मुस्लिम सीट्स में 210 में से 199 कांग्रेस को मिले, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट में 75 में से 73 मुस्लिम लीग को मिले। यह जो संख्या है, मतलब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करे, कांग्रेस को वह हक अब खत्म हो गया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के द्वारा, क्योंकि पृथक विधायिका है। यह एक विभाजन के तरफ एक बढ़ता हुआ कदम था। कांग्रेस ने जो प्रतिनिधि चुन करके आए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया गया, जिसने, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया कि अगस्त 1947 में भारत का विभाजन होना है, तो एक अलग से बना करके दिया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान के संविधान का ब्लूप्रिंट का निर्माण। जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, बड़ा मुश्किल समय था, और कृपलानी जी प्रस्ताव लाते हैं कि हम सबके बीच वयोवृद्ध हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी काउंसिल में कई वर्ष रह चुके थे, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे, काफी बड़ा नाम था, पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम था। इनको टेम्पररी चेयरमैन कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए चुन लिया गया। और वह जो असेंबली में बात कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो बड़ी अच्छी बात है।
that it had evoked the interest among various communities. The Constituent Assembly के बनने से हर समुदाय में एक उत्साह और एक उम्मीद की लहर आ गई थी, क्योंकि अब यह लग रहा था कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उसका अंतिम समाधान संभव हो पाएगा. It will be a final settlement of the problem of all the problems and the issue of all issues, and that is namely the independence of India and her economic freedom. जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमारे पास फ्रीडम नहीं है, ये यहां से शुरुआत होगी. Your proceedings may be marked, and he addresses the gathering with a vision which may restore India to her pristine glory and give her a place of honor and dignity among the great nations of the world. जो भारत के अतीत का सौंदर्य रहा है, भारत के अतीत की महिमा रही है, वह पुनर्स्थापित हो पाएगी, वह महिमा, और आप विश्व के महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो जाएंगे उस गर्व के साथ, उस गर्व को, उस महिमा को आप दोबारा हासिल कर सकें. इसके 2 दिनों के बाद सर्वेपल्ली राधाकृष्णन का भाषण है और वह कह रहे हैं, इस अपने बहुत लंबा भाषण है, It will be a constitution which will be democratic in the true sense of the term. ट्रू शब्द महत्वपूर्ण है कि सही मायने में यह लोकतंत्र को स्थापित करने वाला संविधान होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्विटी की बात करेंगे. Every individual should feel that he is proud to belong to this great land. वह इस भूमि का हिस्सा है, इस भारत भूमि का, उसका जो गौरव है वह इस संविधान से पुनर्स्थापित होगा. A nation does not depend on identity of race or sentiment or on ancestral merit, but it depends on persistent and continuous way of life. हमारी जो जिंदगी है वह किसी समुदाय या किसी भावना या पिछले स्मृतियों पर हासिल नहीं होगा हमारा गौरव. हम यदि लगातार उस दिशा में काम करते जाएंगे जो हमारे परंपरा से मिला है, तभी हमें गौरव मिल सकता है. Such a way of life belongs to the very soil of this land. It is there indigenous to this country as much as the waters of the Ganges or the snows of the Himalaya. जैसे हिमालय के बर्फ हैं और गंगा का पानी है जो अनवरत चला आ रहा है, उसी तरह से जो हमारा जो जीवन दृष्टि है, हमारी जो जीवन दृष्टि है उसी रूप में चला आ रहा है, उसको हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं इस संविधान के द्वारा. और डिफाइन करते हैं हिंदुस्तान. देखिए कितना बढ़िया डिफिनेशन है. इंडिया इज ए सिम्फनी where there are as in an orchestra different instruments. जब सिम्फनी होता है ऑर्केस्ट्रा में बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, each with its particular sonority. किसी की आवाज ऊंचे ऊपर है, किसी का सुर नीचे है, each with its special sound. लेकिन हर का साउंड यूनिक है, अलग अलग है. all combining to interpret one particular score. यह जो अलग अलग सुर में चीजें चलती हैं, सबके जो अलग आवाज है, सब मिलकर के एक गीत का निर्माण करते हैं. वह मिलकर के, वह सिम्फनी के द्वारा ही संभव है. It is this kind of combination that this country has stood for. It never adopted inquisitorial methods. इसने कभी किसी दूसरी भूमि को नहीं हड़पने की कोशिश की. It never asked Parsis or the Jews or the Christians who came and took shelter there to change their creeds or become absorbed in what might be called a uniform Hindu humanity. Jews आए, पारसी आए, ईसाई आए, मुसलमान आए, किसी को भी यह नहीं कहा कि आप हिंदू बन जाओ या हिंदू ह्यूमैनिटी का हिस्सा बन जाओ. Live and let live. This has been the creed. This has been the basic motto of this land, the basic spirit of this land. खुद जिए, सबको जीने का अधिकार दीजिए, यही इस जमीन की खासियत रही. 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का यह चौथा दिन है. 9 तारीख को शुरू हुआ है. 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उद्देश्य
हम जो संविधान बनाने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को लेकर के एक प्रस्तावना रखा जाता है, पारित की जाती है। एंड व्हेन इंट्रोड्यूसिंग दिस रेजोल्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू says it in so many words that let us take it as a pledge, not as a mere resolution. यह हमारे लिए एक क्रीड है, हमारे लिए एक शपथ के रूप में। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कानून बन रहा है, हम शपथ लेके हम इस रोड पर, इस मार्ग पर आगे बढ़े। This pledge, this resolution visualized India as an independent sovereign republic, wherein, this line is very significant, wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the people. जो शक्तियां हैं सरकार की, सरकार के हर अंग की, वह शक्ति लोगों से आ रही है। And therefore, this constitution would guarantee every citizen justice, equality of status, of opportunity, equality before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, action, but subject to law and public morality. Adequate safeguards for minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes. सबके लिए सुरक्षा का भी भाव हो, जो कम संख्या में हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उसके लिए सुरक्षा का भाव भी हो, और हर व्यक्ति के लिबर्टी की, स्वाधीनता की पूरा सम्मान किया जाए। He underlined that this ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. There is some magic in this moment of transition from the old to the new. वो यह कह रहे हैं नेहरू जी कि यह जो पुराने से नए में जाने का मार्ग है, इसमें कुछ जादू है। There is some magic in this transition. Let us visualize this magic. Let us realize this magic. Governments do not come into being by state papers. आप कितना भी कानून बना लो, आप कितने भी कागज लिख लो, उससे सरकारें नहीं बनती है। Governments are in fact the expression of the will of the people. लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, उसी चाहत से, उसी सोच से, उसी कमिटमेंट से सरकारों का निर्माण होता है। We have met here today because of the strength of the people behind us, and we shall go as far as the people, not of any party or group, but the people as a whole shall wish us to go. किसी पार्टी या समुदाय के हिसाब से हमें नहीं चलना है, समवेत रूप में जो लोग चाहेंगे, जितना दूर हमें ले जाने के लिए अनुमति देंगे, उतना दूर हम जाने के लिए तैयार हैं। We should therefore always keep in mind, he is addressing the members of the Constituent Assembly, the passions that lie in the hearts of the masses of the Indian people and try to fulfill them. जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है कि जो लोगों की इच्छा है उसको ध्यान में रखिए जब आप संविधान का निर्माण करेंगे। अब हम आते हैं किस तरह से पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के साथ साथ जो और भी समस्याएं जुड़ी हुई थी, खास करके इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की, उसमें हाउ सरदार पटेल बिकम्स अ बिग स्टेट्समैन। इफ यू टेक द जर्नी ऑफ सरदार पटेल in Indian politics, this was his moment of reckoning. पार्टीशन हुआ और उस 11 अगस्त 1947 को एक सभा को संबोधित कर रहे हैं पटेल, और वहां बार बार कह रहे हैं कि पार्टीशन हो गया, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर लाइफ ऑन ए क्लीन स्ट्रीट। अब हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का फिसीपेरस टेंडेंसीज हो, पेरिफेरल टेंडेंसीज हो, उससे हम निपट सके। वी हैव डन अवे विथ वेटेज एंड कम्युनल इलेक्टोरेट। वी मस्ट, this is so significant for internal security, we must also liquidate the forces that create differences, and if that is achieved, everything would be all right. जो भी शक्ति विभाजन की कोशिश करे, उन शक्तियों को हम खत्म कर दें, तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वहां पर एक माइनॉरिटीज कमेटी का एडवाइजरी बोर्ड भी था, एडवाइजरी कमेटी भी था, जिसका कि चेयर पटेल कर रहे थे। उसमें कुछ सदस्यों ने मुसलमानों के लिए विधायकों में आरक्षण की मांग की, और
Patel was very unhappy about this fact, but he was able to persuade the leaders to drop the demand. तो और वह देखिए जब एक्चुअल वोटिंग के लिए आया तो 58 लोग पटेल के पक्ष में थे, सिर्फ 3 ही लोग पटेल के विपक्ष में थे। 1949 के मई में पटेल कहते हैं संविधान सभा में, आई वांट द कंसेंट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। मुसलमानों का एक अलग पाकिस्तान बन गया, ये क्रेडिट जो लोग वहां चले गए वो ले लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको घाटा हुआ है, उनको फायदा नहीं हुआ है। I believe I respectfully appeal to the believers in the two nation theory to go and enjoy the fruits of freedom and leave us here in peace. जो दो राष्ट्रीय सिद्धांत में विश्वास करते हैं जिसके कारण पाकिस्तान बना, वह हमें यहाँ शांति से रहने। अब इंटीग्रेशन यह बहुत यूनिक, बहुत अलग तरह की स्थिति थी जहां पर देश तो आजाद हो गया, लेकिन जो देसी रियासतें हैं लगभग 35 से 40% जो हिस्सा है भारत का, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है आज, उसमें यह जो हिस्सा है कि 550 से ऊपर की रियासतें आजाद हैं और उसको यह दिया जा रहा है कि यह बात कही जा रही है दैट यू कैन साइड ईदर विथ इंडिया और विथ पाकिस्तान और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। सो दिस काइंड ऑफ freedom given to the Indian states creates a difficult preposition for the Indian leaders because most of these states are landlocked, वो आपके मानचित्र के अंदर ही है। जब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स बना और इनको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स बना हुआ था जब पटेल को उसकी अध्यक्षता दी गई, उसकी जिम्मेदारी दी गई होम मंत्रालय के अलावा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा इन राज्यों को, 5 जुलाई 1947 का ये स्टेटमेंट है, एंड इफ यू लुक एट दैट स्टेटमेंट इज ब्यूटीफुल। ही आस्क्ड दीज स्टेट्स कि कम एंड ज्वाइन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सो दैट वी मेक लॉज टुगेदर सिटिंग एज फ्रेंड्स, देन टू मेक ट्रीटीज एज एलियंस। हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, फिर झगड़ा करें, फिर हम समझौता करें, उससे बेहतर है कि आप हमारे साथ संविधान सभा में आ जाइए और हम लोग मिलकर के एक संविधान का निर्माण करते हैं। This also he also implied a threat. इन्होंने कहा पटेल ने कि यदि आप 15 अगस्त तक नहीं आए हमारे साथ और उसके बाद आपके राज्य के लोग यदि आपके खिलाफ जाएंगे तो भारत की सरकार, भारत की सेना आपका कोई मदद नहीं कर पाए। So by 15th August, most of these states acceded to India except for 3 states, Junagadh, कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। इन तीनों की कहानी थोड़ी अलग अलग है, कुछ तो कहानी हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। जूनागढ़ सौराष्ट्र के कोस्ट पर है, सीमा पर है, एंड इट इज सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी विथ नो ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई कंटिन्यूटी नहीं है बाउंड्री। Majority of its population were Hindus and wanted accession with India, but its Nawab announced accession with Pakistan on 15th August. There was a revolt against the Nawab, but fortunately the Diwan of Junagadh, when this revolt rose, the Diwan of Junagadh asked for India's intervention. Diwan was Shahnawaz Bhutto, the father of Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto is the father of Benazir Bhutto. तो शाहनवाज भुट्टो ने भारत की सेना को बुलाया और इंटरवीन करने के लिए कहा, एंड विद इन डेज इंडिया हैड कंप्लीटली लिक्विडेटेड द फोर्सेज ऑफ अपोजिशन और प्लेबिसिट करवाया, वहां पर लोक मत हासिल किया गया। इट वाज ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ इंडिया, एंड दिस वाज वन स्टेट, Junagadh state, which Patel used to say that Gandhi is also very keen that Junagadh must become part of India. तो इसलिए पटेल बोलते हैं कि नहीं, मुझे सबसे पहले जूनागढ़ को लाना है, क्योंकि गांधी जी भी बार बार कहे। कश्मीर की कहानी ज्यादातर लोग जानते हैं कि कश्मीर मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट था, लेकिन हिंदू राजा थे, और 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली, रेडर्स आए लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तान की सेना उसके पीछे थी, and Maharaja Hari Singh, who had not made up his mind till now,
sought India's support, and India put a condition कि हम अपनी सेना को तभी भेज पाएंगे जब आप हमारा हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यदि आप हमारा हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम अपनी सेना को कैसे भेज सकते हैं आपके राज्य? So Maharaja Hari Singh signed the instrument of succession. The Indian armies, Indian Air Force reached Kashmir, reached Srinagar, और उसके बाद 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी रेडर्स वे driven out. This is how Kashmir became. बाकी बाद का हिस्सा, बाद की कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस समय में कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का। What was Hari Singh's, Maharaja Hari Singh's reservation for not immediately joining India? Because there were too many forces present in his politics, in his domain of politics, and for years the Dogra Rajas had ruled over Kashmir. So he somehow felt that he can remain independent. Kashmir can remain independent, and this question may not arise at all. हो सकता है कि हम पूरी तरह से आजाद ही रहें, न भारत में जाना पड़े, न पाकिस्तान में जाना पड़े. Had Pakistan not intruded into Hari Singh's territory, Kashmir's territory, India would have been a silent spectator at that time. यदि उसमें नहीं घुसता तो उस प्रश्न पर हिंदुस्तान, क्योंकि instrument of accession was very important. Kashmir was a very delicate issue. और उसका जो strategic position है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी भी है, पहले भी था. तो हरि सिंह को कहीं न कहीं यह लगा कि जैसे वर्षों से उनका परिवार डोगरा राजा कश्मीर पर शासन कर रहे हैं, वह आगे भी करते रहेंगे. But when the raiders came into Kashmir, then he felt कि ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट हो गया, अब तो ये सारा हड़प लेंगे. तो इन्होंने इंडिया से अपील की, बट इंडिया पुट ए कंडीशन दैट विदाउट एक्सेशन वी कैन नॉट गो, एंड दैट इज हाउ हरि सिंह एक्सीडेड टू इंडिया. Hyderabad story is very interesting. If you see a film on Sardar Patel, it's called Sardar, where Paresh Rawal has acted as Sardar. हैदराबाद का निजाम का स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है. And look at the audacity of the Nawab, कि चारों तरफ से हिंदुस्तान के टेरिटरी से घिरे हुए हैं और उनको यह लग रहा है, यह उम्मीद है कि वह इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, because they are being backed by Pakistan. Patel said that he would not allow an isolated spot which would destroy the very union which we have built up with our blood and toil. वहां पर काफी विद्रोह शुरू हो गया था निजाम के. इसमें एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ इंडियन गवर्नमेंट का, स्टैंड स्टिल सीज फायर एग्रीमेंट था, लेकिन निजाम कुछ निर्णय नहीं ले रहे थे, वो डिले कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे कि हाँ हम आपके साथ हैं, नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे थे. और इस बीच में ही हेल्प्ड द ग्रोथ ऑफ अ मिलिटेंट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका एक पैरामिलिट्री विंग था कॉल्ड रजकर्स, और बहुत दंगे फसाद शुरू हुए जिसके विरोध में सत्याग्रह वहां शुरू हुआ. जून 1948 में पटेल ने नेहरू को कन्विंस किया कि अब और बर्दाश्त करना अच्छी बात नहीं है, वी मस्ट गो स्ट्रेट एट आफ्टर हैदराबाद. और बहुत महीनों के बाद इंतजार करने के बाद 13 सितंबर 1947 को पटेल सेंट द 1948 को पटेल सेंट द इंडियन आर्मी इनटू हैदराबाद, और 3 दिनों के बाद ये पूरा का पूरा हैदराबाद हिंदुस्तान के साथ होगा. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड this part is important. The integration is important because it, to some extent. So what was the demography of India, of Hyderabad at the time of partition? Hyderabad was also tilted. See, if you look at Hyderabad's composition even now, it's not a state. If I will go to pre-partition days, there were 4 states which were Muslim majority state among the Indian provinces, among the British provinces. उसमें पंजाब है, बंगाल है, सिंध है और फ्रंटियर प्रोविंस. उसके अलावा कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है. उसके अलावा ऐसी स्थिति कहीं नहीं है.
लेकिन हैदराबाद का यदि आप अर्बन कंपोजिशन देखिएगा, यदि नोबिलिटी का कंपोजिशन देखिएगा या पावर लॉबीज का कंपोजिशन देखिएगा कि दे आर ओवरवेलमिंगली मुस्लिम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट नवाब एक्चुअली फेल्ट दैट ही कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। कश्मीर तो चूंकि अब भारत पाकिस्तान के बीच में लैंड लॉक्ड नहीं है, वह तो सोच रहा है दूसरी बात है, लेकिन हैदराबाद तो चारों तरफ से हिंदुस्तान के टेरिटरी से घिरा हुआ है। राइट। इसीलिए हैदराबाद में जो पीपल्स प्रोटेस्ट है दैट बिकम सिग्निफिकेंट। And people also migrated to Pakistan from Hyderabad, right, sir? They did. Yeah. Gitanjali, I would be happy to take questions. Okay, great. Okay. So that, or we can have some interactive time also if it's not getting too late. सर है हमारे पास तो वक्त अभी थोड़ा। जी, कौन सवाल पूछना चाहेगा? अभिनव जी पूछिए। भुवन जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया सेशन, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा, आपने जो सेशन स्टार्ट किया था तो आपने कहा कि आपका इंसान का वर्तमान जो है उसका इतिहास में निर्धारित है और हमें अपने इतिहास का एहसास होना बहुत आवश्यक है। Am I right? अगर मैंने सही पूरी तरह से मैंने उसको एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट नहीं किया कि इतिहास ही हमारे वर्तमान को बनाता है, लेकिन हमने यह अवश्य कहा है कि यदि हमें वर्तमान को समझना है तो इतिहास को परखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो फिर आपने हिंद स्वराज की बात की जो गांधी जी ने किताब लिखी, तो ये किताब उन्होंने गुजराती में लिखी, ठीक है, जबकि वो इंग्लिश में लिख सकते थे, उनको अच्छे खासे ज्ञाता थे अंग्रेजी भाषा के, और उसके बाद ट्रांसलेटेड वर्जन आए होंगे उस किताब के। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी उन्होंने गुजराती में लिखी। तो भारत का संविधान जो है हिंदी में ही क्यों नहीं लिखा गया और इंग्लिश में क्यों लिखा गया, और ये अंग्रेजी भाषा पे हमारी अधीनता कब तक चलेगी? मतलब मैं एक ही सवाल, ये तो बहुत अच्छी बात है। गांधी जी जितना हिंदी के समर्थक थे उतने भारतीय भाषाओं के भी थे। गुजराती लिखना उनको ज्यादा सहज लगता था हिंदी के मुकाबले, वो गुजराती में लिखते थे, लेकिन हिंद स्वराज को उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किया इंग्लिश में फॉर ए चेंज। हाँ। और जब वो लिख रहे थे तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे। हाँ। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें आप देखेंगे कि एक ऑल इंडिया कंपोजिशन है, तमिलनाडु से भी, मद्रास से भी लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से भी लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व है, और जितने भी कानून प्रिसीडिंग लॉज बने थे, आप नेहरू कमेटी के रिपोर्ट को भी देख लीजिए, या 1915 या 35 के कानून को भी देख, 1919 और 1935 के कानून को देख लीजिए, सारे लॉज अंग्रेजी में बने। इसीलिए भाषा को लेकर के इन्होंने कुछ इस तरह से नहीं कहा कि हम पहले हिंदी में बनाए बाद में उसको अंग्रेजी में करेंगे, या पहले अंग्रेजी में। उन्होंने एक मानक, एक जो स्टैंडर्ड है उसको अंग्रेजी में रखा लॉ को, और वो इसलिए भी कि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में बहुत सारे लीगल माइंड है जिन्होंने अपनी कानूनी शिक्षा उसी पद्धति से की है जहां पर कि अंग्रेजी में पढ़ाई जाए। ठीक। तो उन्होंने उस हिसाब से निर्माण किया, लेकिन वहां पर हिंदी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही कि अभी तो हम आजाद हुए, अभी हम नहीं कर सकते कि पहले हिंदी लाओ फिर आप कहीं पर पुल बनाओ या ब्रिज बनाओ या इंडस्ट्री बनाओ। आर्थिक आजादी आपको लाना है, लेकिन साथ साथ भाषा का भी परिष्कार, भाषा को भी उन्नति करने की कोशिश करें। इसलिए राजभाषा को लेकर के भी कुछ समय सीमा दी गई कि इतने समय के बाद आप हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन आपको भी मालूम है कि कुछ क्षेत्रों में काफी राजनीति हुई और हिंदी को लेकर के बहिष्कार हुआ, लेकिन आप फिर भी देखें एक संपर्क भाषा के रूप में और प्रथम भाषा के रूप में भी हिंदी का सबसे बड़ा प्रेजेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं
उससे कंफ्लिक्ट के सिचुएशन में हिंदी नहीं, हिंदी एज ए लैंग्वेज वाज नेवर इन कंफ्लिक्ट विथ एनी इंडियन लैंग्वेजेस। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कोई भी भारतीय भाषा जानने वाला हिंदी आसानी से धीरे धीरे सुन करके, टीवी देख करके, वेब सीरीज देख करके समझ जा रहा है। तभी तो हिंदी की इतनी लोकप्रियता हो रही। तो ये अंग्रेजी की अधीनता और अपनी सच की स्वाधीनता कब मिलेगी? ये तो देखिए, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम से अंग्रेजी मैं तो यह मान करके चलता हूँ कि जो स्वाधीनता है वो मन की है। हम भाषा जो है एक हमारे सोच को एक वाणी देता है, एक संप्रेषणीयता देता है। और आप, जब मैं बच्चा था और अब मैं देख रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के माहौल में भी देख रहा हूँ, जब हम स्टूडेंट के रूप में थे वहाँ हिंदी लोग नहीं बोलते थे अक्सर। अब बहुत सारे शिक्षक हिंदी में बात करना चाहते हैं, बच्चे हिंदी में बात करना चाहते हैं। अब हिंदी को लेकर के वह बोध नहीं रहा कि यह हिंदी पिछड़ी भाषा है अंग्रेजी के मुकाबले। अब यह बराबरी का बोध है और कुछ मायनों में बेहतर बोध भी है। जैसे जैसे आपके जॉब्स खुलते हैं हिंदी के लिए, और आप तो मान के चलिए कि अब तो यह विकल्प है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों ही रूप में आना चाहिए। हिंदी तो अवश्य ही आना चाहिए यदि आप आगे बढ़ना है। तो हिंदी के साथ जो गौरव है वह पुनर्स्थापित हो रहा है। इस विश्वविद्यालय में ही हमने देखा, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हिंदी बोलने वाले संकोच करते थे विद्यार्थी, अब हिंदी बोलने वाले बहुत गौरव के साथ बोलते हैं। यह परिवर्तन तो हुआ हमारे जीवन काल में ही हो रहा है, हमारे छात्र जीवन से शिक्षक जीवन तक यह परिवर्तन हो रहा है, और ये सकारात्मक परिवर्तन। चलो, आशा है जल्द ही बिल्कुल हमारे देशवासियों को हिंदी पे गर्व और हर्ष हो। हिंदी है मैं तो इस बात को खुद ही महसूस करता हूँ, खास करके छात्रों में, शिक्षकों में भी अब ये चीजें बहुत बदल रही हैं। हेलो। हाँ। जी, आपका सवाल हो गया ना अभिनव जी? अब दूसरे लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी, हाँ प्लीज आ जाइए यहाँ पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सब्जेक्ट से ही मैं थोड़ा सा हटके कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल एनसेंट हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे यूनिवर्सिटी के मामले में हमने पढ़ा या जो जाना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी थी। अभी मुझे पता लगा, या हमारे ही एक सीनियर फैकल्टी जो निर्मल कुमार साहब जो वेंकटेश्वर कॉलेज में हैं, जब वो कभी हमारे यहाँ डेपुटेशन पर थे तो उनसे बातचीत हुई थी। एक और यूनिवर्सिटी है जो जहानाबाद के आसपास, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा बड़ी है, वो शायद उसकी खोज हुई है, ऐसा कुछ निकल रहा है। एक चीज। दूसरी, मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा कि एक और भी यूनिवर्सिटी जो नालंदा के सराउंडिंग्स में ही आसपास है, जो शायद उससे बड़ी थी, तो उसमें क्या चीजें हैं, क्या डेवलपमेंट है? देखिए, जो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों की चर्चा होती है, हम लोग तो यदि आप मुझे अपना ईमेल भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप, तो मैं आपसे कुछ आर्टिकल शेयर करूंगा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम पे। जो तक्षशिला है और नालंदा है, ये मुख्य विश्वविद्यालय है, क्योंकि विदेश के छात्र भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। विक्रमशिला भी है जो आपने बिहार में दूसरा विश्वविद्यालय का नाम बोला है। तो सबका प्रोपोर्शन अलग अलग है, सब अलग अलग तरह के चीजों पर जोर, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है वो हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म पर ज्यादा जोर दे रहा है। और आप तो आश्चर्य करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो बहुत छोटे स्तर का बच्चा है, जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, उसको भी 2 वर्ष पाणिनि का अष्टाध्यायी रटाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसका हर अर्थ को समझ रहा है, लेकिन ग्रामर के नुआंसेस को उसको रटाया जा रहा है। और जब वो 3-4 साल पढ़ लेता है, तब फिर पतंजलि का महाभाष्य उसके पास आता है, जो पाणिनि पर सबसे बढ़िया कमेंट्री माना जाता है। और जब नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश के छात्र या दूसरे छात्र जो हायर एजुकेशन के लिए आते थे, तो एक विद्वानों की टोली होती थी जो इंटरव्यू कर लेती थी रिसेप्शन में और उसको एडमिट करती थी। तो वह बहुत अच्छी बहुत बड़ी परंपरा थी। उदार ज्ञान के परिष्कार के लिए, विकास के लिए नालंदा विश्वविद्यालय ने, तक्षशिला ने, विक्रमशिला ने, वो बहुत बड़े धरोहर हैं। उसके साथ साथ पैरेलल एक गुरुकुल सिस्टम भी चलता था।
जहाँ जैसे अभी हम लोग लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं कि भाई बच्चा तो पढ़ लिया लेकिन दक्ष नहीं हो पाए, ज्ञान तो उसको हो गया लेकिन दक्ष नहीं हो पाए, व्यावहारिक बुद्धि नहीं आई, वह समाज के लिए एक न्यूसेंस बनता जा रहा है। लेकिन आप यदि लाइफ स्किल्स की बात करें, जो गुरुकुल व्यवस्था है जहां पर कि विद्यार्थी 5 साल 7 साल गुरु के घर में रह करके उसके सारे काम भी कर रहा है, शिक्षा भी हासिल कर रहा है, स्पेशलाइज भी कर रहा है, वह व्यवस्था भी थी। जब रविंद्रनाथ ठाकुर शुरू कर रहे हैं शांति निकेतन में, तो वो बार बार इस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं कि भाई जंगलों में लोग शिक्षा लेते थे। तो वह समय था और किसी न किसी रूप में उसको हम लोग फिर से रिवाइव कर सकते हैं इवन एट ए स्मॉल लेवल। लेकिन आप देखेंगे जो लाइफ स्किल्स है या इन्वायरमेंट के प्रति, वातावरण के, पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता है, उसको बढ़ाने की बात होती है। यह चीजें बार बार आ रही हैं और दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं आ रहा है, दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में भी यह बात आ रही है कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल हो। ऐसा नहीं कि उसको आप मशीन बना दें कि तो उसने कितना पैसा कमा रहे हैं, नौकरी से उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उस नौकरी में कितना पैसा है। सिर्फ नौकरी से ही इवेल्युएट करेंगे कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, तो आदमी कहाँ गया, फिर समाज के लिए उसको उपयोगिता कहाँ चली गई? यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं हिंदी के लिए एक और चीज कहना चाहूंगा। अभी सर ने पूछा था, सर ने कि हिंदी का कितना चलन बढ़ा है। जो भी अभी मुझे पता लगा कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अभी कुछ दिन पहले ही चक्रवर्ती सर आए हुए थे, वाइस चांसलर साहब जो हैं, तो उन्होंने मुझे बताया और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुधवार वाले दिन आज भी एक प्रेयर की जाती है जो उपनिषद के हिसाब से ही की जाती है, और वो 1886 से लगातार चली आ रही है, मतलब बगैर किसी ब्रेक। तो ये एक नई जानकारी भी थी मैंने आपसे कुछ जो परंपरा रविंद्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने वहां शुरू की, वो अभी भी आज चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। और गुरुकुल की वाली बात में लेटेस्ट जैसे हमारे बनस्थली यूनिवर्सिटी है, बनस्थली में अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन 15 साल पहले तक तो था कि बच्चे जो हैं जैसे गढ़वाल की तरफ में या अपने उत्तरांचल उत्तराखंड वगैरह में भी काफी गुरुकुल जो थे उस तरह की शिक्षा दे रहे। तो सर मैं उसके लिए पूछना चाहता था, जो जहानाबाद के पास जो अभी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में वो डॉक्टर निर्मल जी ने जिक्र किया था, उसमें क्या चीज है, कितने डेवलपमेंट हुई है, क्या चीज है? और रिसेंटली भी मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ा, मुझे उसकी जानकारी जहानाबाद के पास, मैं तो जहानाबाद के आसपास का नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो आपने बोला है तो मैं निर्मल जी से कभी बात होगी तो उनसे भी साझा करूंगा, मतलब पूछूंगा। मेरी कई साल पहले बात हुई थी, लेकिन अभी मैंने न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले पढ़ा, मेरा भी शौक है मतलब इसमें। तो उनकी बात वहाँ प्रूव हुई कि पता लगा कि वहाँ पर भी एक जो है कोई यूनिवर्सिटी है जो नीचे वो धीरे धीरे अभी निकलने के उसमें, जिसकी अभी खोज, और ऐसा माना जा रहा है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा बड़ी। इस विषय में भी जब कभी आपको भी हो तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद सर। Yeah, you want to ask something? You want to say something? Sir, I just want to ask you from the point of view of language. अभी भाषा की बात हो रही थी, तो जो बोलचाल की हमारी भाषा थी हिंदुस्तानी, मतलब obviously I think, is it right that in the popular belief or a lot of people believe that जो हिंदी और उर्दू का जो एक तरह से ये जो पार्टीशन, मतलब the role that partition played in these two languages to be separate in a way that we see it together, that now they are full-fledgedly separate, लेकिन जो हमारी मिली जुली जबान थी हिंदुस्तानी, उसके बारे में भी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ डिबेट्स थी? देखिए, जो हिंदुस्तानी शब्द है, जो हिंदुस्तानी का अर्थ हुआ जो हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जबान जी, इसका तो इसका और कोई दूसरा अर्थ तो नहीं है। लेकिन क्या हिंदुस्तानी हिंदी ही है या हिंदुस्तानी उर्दू ही है या मिश्रित है, इसको लेकर के अलग अलग लोग अलग अलग बात कह सकते हैं। जो हिंदी हम बोल रहे हैं उसको हम खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं। यह तो एक मानक स्वरूप है कि यह ब्रज भाषा नहीं है जी, अवधि नहीं है, यह एक खड़ी बोली हिंदी है जो कि 19वीं शताब्दी में आ रहा है। हरियाणा के आसपास की हिंदी को बहुत शुद्ध माना गया, और उसके बाद अभी देखेंगे मध्य प्रदेश में जाएंगे आप, थोड़ा छत्तीसगढ़ में जाएंगे, और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। अब जहां पर शब्दों का सवाल है कि कौन शब्द संस्कृत निष्ठ है, कौन शब्द फारसी से आ रहा है, कौन शब्द अरबी भाषा से आ रहा है,
उसको लेकर के कुछ लोगों ने हिंदुस्तानी कहना शुरू किया कि भाई जिसमें उर्दू के शब्द भी आ रहे हैं। हमें तो मालूम भी नहीं चलता है कि जब हम बोल रहे हैं तो हम कौन सा शब्द? खड़ी बोली हिंदी बोल रहे हैं या हिंदुस्तानी बोल रहे हैं। अनावश्यक यदि हम उर्दू फेंट देंगे या अनावश्यक हम संस्कृत फेंट देंगे किसी में, तो यह समस्या उत्पन्न होगी। जब हिंदी उर्दू को लेकर के विवाद होना शुरू हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पर, और यह बता दो यह जो विवाद था बहुत अनावश्यक था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जिसको उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, कोर्ट की भाषा में सिर्फ उर्दू थी, हिंदी नहीं था। तो उर्दू रहने से, अच्छा, उर्दू जो भाषा थी वो इतना ज्यादा क्लिष्ट था कि उर्दू जानने वाले भी उसको नहीं समझ पा रहे। तो वह डिमांड था हिंदी नागरी प्रचारणी सभा का और मदन मोहन मालवीय जी का भी कि हिंदी को पैरिटी मिले। उसके खिलाफ उर्दू के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो गए और फिर राजनीति शुरू हो गई। फिर इतिहासकारों ने लिखा कि हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हो गई। मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट को यदि छोड़ दें तो हिंदी उर्दू जबान में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हिंदी के राइटर्स दबा करके उर्दू के शब्द लेते हैं, उर्दू के राइटर्स बहुत सारे संस्कृत या हिंदी के शब्द लेते हैं जो कि अरबी भाषा से नहीं आ रहे हैं। उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई भाषा है, उर्दू कोई बाहर से आई हुई भाषा नहीं है। यह यहाँ, और यदि आप पोएट्री करें, गजल लिख रहे हैं, उसमें उर्दू में बहुत मदद मिलती है। यदि आप गजल लिख रहे हैं, शेर लिख रहे हैं, उर्दू से मदद मिलती है। यदि वीरोत्तेजक कविता लिखेंगे, उसमें हिंदी में मदद मिलेगी। तो कुछ शब्द, मान लीजिए मेरी भाषा है, मातृभाषा है मैथिली, उसमें मैं गजल लिखूं बड़ा अटपटा सा लगेगा, उर्दू में लिखूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। हिंदी यदि हम वीरोत्तेजक, मान लीजिए ए मेरे वतन के, और उसको हम और ज्यादा चढ़ाना है वीर रस को, हिंदी से काफी मदद मिलती है। तो हिंदी उर्दू में मेरे हिसाब से मूल जो फर्क है वह स्क्रिप्ट को लेकर के है। लेकिन यदि उर्दू बोलने वाले अनावश्यक बहुत ज्यादा शब्द अरबी का ले लेंगे तो उर्दू जबान वाले भी नहीं समझ पाते हैं। जी जी जी। तो कोई भी जो प्रक्रिया हो बोलने की, संप्रेषणीयता की, वह ऑडियंस को ध्यान में रख करके हो। हिंदुस्तानी जो भाषा है वह कोई अलग से भाषा नहीं है, वह तो एक हिंदू उर्दू विवाद हो रहा था कुछ नेताओं में। तो गांधी जी ने यह कहना शुरू किया कि भाई हमारी भाषा हिंदुस्तानी हो, जिसमें कि हिंदी हम बोल रहे हैं और उसमें शब्द उर्दू लिखने वाले कई सारे देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं, देवनागरी में भी लिखते हैं। कई सारे जो, जैसे बहुत सारे गायक हैं जिसको देवनागरी नहीं आता है, उर्दू का स्क्रिप्ट आता है, वो हिंदी का गाना उर्दू वाले स्क्रिप्ट में लिख करके गाते हैं। जी। तो मानक भाषा हिंदी है। हिंदुस्तानी तो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक समन्वय लाने के लिए कहा गया कि भाई ज्यादा झगड़ो मत, हिंदुस्तानी बोलो। और ये भी था सर इसमें, जैसे भाषा के लिए अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार वाले राज्यों में जाते हैं तो वहाँ जो पुराने जमीनों के कागजात, दस्तावेज थे, जो भी पेपर थे, वो देवनागरी में थे। दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली के आसपास आ जाइए, उर्दू में है। अभी भी यहाँ तक कि 30,000 कोर्ट में एक बहुत पुराने बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, अब तो शायद उनका देहांत हो गया है, तो लोग उनसे ट्रांसलेट कराया करते थे। वो इसलिए बैठे हुए थे 30,000 कोर्ट में कि उर्दू से उसमें अभी भी पुराने दस्तावेज आप देख लीजिए। बिल्कुल। हमारे ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट हुआ करते थे जो हमने अपने यूनिवर्सिटी के यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट से कन्वर्ट कराया, जैसे बाकी लैंग्वेज के लिए। तो दिल्ली और उसके आसपास में जितने भी दस्तावेज थे वो उर्दू में, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में वो पूर्णतः जो है देवनागरी में, गुजरात की तरफ में या जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का बॉर्डर का इलाका है वहाँ डिफरेंट तरीके जो लोकल बिल्कुल करते थे। अब जाके धीरे धीरे वो सब इंग्लिश या एक कॉमन लैंग्वेज में कर रहे, जो इजी बिल्कुल कर सके उस लैंग्वेज में यूज करने। जी, all right. बिल्कुल सर। If there are no more questions, yeah, so I'd request Meenakshi madam to conclude the session. थैंक यू भुवन जी। जब मैंने भुवन जी को आमंत्रित किया था तो मैं ये जानती थी कि ये जिस भी विषय में बोले, लेकिन वार्तालाप अगर जिस और दिशा में जाएगा ये सबको ये सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब तो हम इनको जानते हुए 15-17 साल हो गई और इंसिडेंटली ये मेरे बैच के ही है, 1 साल सीनियर है शायद। तो और एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनको डिस्कशन में कोई हरा नहीं सकता, एटलीस्ट डिस्कशन हो या डिबेट हो।
तो आज मुझे वो चीज नजर आ रही है। बात शुरू हुई संविधान की और बात चलते चलते बढ़ गई भाषा पे, हमारे यूनिवर्सिटीज पे, एंड जो भुवन जी हैं इन सब पे उतने ही अच्छी तरीके से सबको मुझे लगता है सेटिस्फाई किए। और जो टॉपिक हमने चुना था, आपस में डिस्कस करके ही चुना था, इसका पर्पस ये था कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं भुवन, ये आप समझ रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेवल पे हैं। और हमारी सोच ये जनरली जब हम ये प्रोग्राम बना रहे थे तो सोच ये थी कि नियम कानून तो ये कहीं ना कहीं से समझ ही लेंगे कि इस किताब में मैं देखूंगा तो मुझे ये समझ में आएगा, इस किताब में मैं देखूंगा तो ये समझ में आएगा। लेकिन एक ओवरऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए एक व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो चीज आपने बहुत अच्छे से आगे लाके हमें बताया। और साथ के साथ पॉलिटी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक था जो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ता है। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जानकारी होनी चाहिए हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है और हमें क्या क्या लोगों को सर्विसेज देने हैं, कहाँ कहाँ हमें संविधान हमें भी बाध्य करता है। तो इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सेशन रहा और मैं देख सकती हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए इसमें। एक भाषा की जो बात आई उस पे मैं ये कहूंगी, आजकल आप लोग कोई 92.7 रेडियो स्टेशन है, उस पे एक उन्होंने डिस्कशन शुरू किया है, अगर आप लोग रेडियो सुनते हैं, कि जो हमारे यहाँ दिल्ली में प्रदूषण है, हम जनरली प्रदूषण के लिए सरकार को जिम्मेदार समझते हैं या दूसरे लोगों को जिम्मेदार समझते हैं, कभी अपने आप को जिम्मेदार समझते नहीं कि हमारा भी एक रोल है। तो उस पे उन लोगों का स्लोगन है कि हवा टाइट है बट दिल्ली के धाकड़ कहते हैं कि जारी अपनी फाइट है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि वो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं, इस चीज में आपका भी उतना ही रोल है। तो जो अभिनव जी ने हिंदी के बारे में बात कही, मैं उस बारे में यही कहूंगा, जनरली हम लोग सोचते हैं कि हिंदी के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे तो इस भाषा को हम आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। अपना अपना, रादर देन हम सोचे कि सरकार करे या दूसरा व्यक्ति करे, हम अपने बोलचाल की भाषा में, अपने बच्चों के साथ, अपने कामकाज की भाषा में जितना हिंदी का प्रयोग कर सके उतना अच्छा है। और ये तो हमारा संविधान भी कहता है और ये है। और जहां तक हिंदुस्तानी, भुवन शायद ज्यादा जानते होंगे इन सब चीजों के बारे में, हिंदुस्तानी वर्ड मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पर्पसफुली अवॉइड करने की कोशिश की थी कि वो एक पैरिटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं चाहते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है, वो पहला आर्टिकल है, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। वहां भी हिंदुस्तान शब्द का अदरवाइज प्रयोग नहीं है। मे बी भुवन इस बारे में ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा कि कानूनी रूप से हिंदुस्तान शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान शब्द आता है। वो जब हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह मुख्य रूप से एक परंपरा के बोध के लिए, एक भौगोलिक बोध के लिए है, एक प्राचीनता के बोध के लिए है। वो धर्म के बोध से संबंधित नहीं, समुदाय को इंगित नहीं करता है। लेकिन जो हिंदुस्तानी भाषा कहा गया कि हिंदुस्तानी भाषा बोलो, ये गांधी जी बहुत प्रयोग कर रहे हैं। और उनको पता है कि जो ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, उसमें कुछ लोग ये हिंदी और उर्दू को भी एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा रहे हैं। यदि जो भी आदमी हिंदी और उर्दू को ठीक से समझ रहा है, वो एक दूसरे को पूरक के रूप में देखता है, वो उसके विरोध के रूप में नहीं देखता है, क्योंकि वो उन भाषाओं का डायलेक्ट एक ही है। हिंदी और उर्दू एक ही तहजीब से, एक ही बात तरह से बोला जाता है, तो डायलेक्टिकली बोथ आर सेम लैंग्वेज। उनके शब्द अलग हैं, कुछ शब्द यहाँ कुछ कम होंगे, वहां ज्यादा होंगे, वहां ज्यादा होंगे, कम होंगे, और स्क्रिप्ट डिफरेंट। लेकिन हिंदी को भी आप उर्दू स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, उर्दू भाषा को भी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो उस औपनिवेशिक वातावरण में सांप्रदायिक सद्भाव को लाने के लिए उस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए। अब हम लोग कैजुअली बोल देते हैं, भारत के बदले हिंदुस्तान बोल देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। संविधान सभा में इस शब्द का या संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं। आपने जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है या हिंदी गाने हैं,
हाँ, हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत, यदि हम बोलेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत, उसका शॉर्टकट हो गया हिंदुस्तानी संगीत। और कर्नाटक संगीत से अलग करने के लिए, जो साउथ इंडियन म्यूजिक है उससे अलग करने के लिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बोल देते हैं, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक बोल देते हैं। चाहे वो हमारे साउथ के गायक थे या जो भी माधुरी के बात करते, या आजकल जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, आजकल यूट्यूब में मैंने कुछ सुना, शायद वो बंगला लड़की है और वो बुजुर्गवार जो गाने गाते हैं, आयु और ठंडी हवा समथिंग कुछ करके, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वो भी देखा जाए कि वो बंगला लैंग्वेज में बोल रही है, मतलब सॉरी बंगला नहीं, कोई दूसरी बाहर की लैंग्वेज है कौन, और हिंदी कॉम्बिनेशन के साथ है। तो जो हमारे हिंदी गाने हैं उनका भी एक बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव है लोगों को आपस में, मतलब म्यूजिक तो अपने आप ही जोड़ने में अनविजिबल वायर है, सब कहने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भुवन, और आपने बहुत एक गूढ़ बात कही कि हिंदी और उर्दू बहुत बेस में एक ही हैं। हम सब लोग इस चीज को समझे, साहित्य में भी और जीवन में भी, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका फिर से मैं धन्यवाद कहती हूँ, और आप सबको इंक्लूडिंग भुवन हम आमंत्रित करते हैं। 8 तारीख को हम एक, जो इस ट्रेनिंग का ही पार्ट था, हम एक अलग से भी लेक्चर कर रहे हैं कन्वेंशन हॉल में, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन 8 मार्च को। तो हमारी जो वक्ता होंगी वो बीके लता जी हैं, राजयोग फाउंडेशन की हैं, जो वुमेन फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडिया पे हिंदी में ही होगा लेक्चर, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। तो आप सबको उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं। जो भी फिजिकली ज्वाइन कर सके वो फिजिकली ज्वाइन करे, और ऑनलाइन तो हम कोशिश करेंगे ये रिले हो ही। तो आप सबका उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। और आगे फिर हम इस तरह से मैं तो ऑर्गेनाइजर हूँ, तो कहूंगी सफलता पूर्वक हम लोग अपना दूसरा हफ्ता पूरा कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स अपनी राय रख सकते हैं। तो फिर आपसे मंडे को मिलते हैं। इसे सेल्फ सर्टिफिकेशन कहते हैं। हाँ, सेल्फ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में यही सीखते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बड़ाई एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई नहीं कर सकता। भुवन ये बात समझ रहे होंगे। तो हम लोग अपना ही सेल्फ सर्टिफिकेशन करते रहते हैं, ताकि कोई कहे ना कहे, हम अपने आप को अच्छा समझते रहे, अच्छे कर पा रहे हैं या नहीं, जो भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग पार्टिसिपेंट्स मंडे को मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग